Recording. Okay. Okay. So today's first question. Let ABC be a right angled triangle. Let ABC be a right angled triangle. D is the midpoint of BC. Sorry, D is the AC. Show that DA is equal to DB is equal to DC. Okay. So question में दिया है कि A triangle. Okay. D is the midpoint of AC. तो मान लीजिए so question में दिया है कि ABC is a right angle triangle with angle B is equal to 90 degrees. ये भी question में ही दिया है. Okay. Point of AC. So this is equal to this. So you have to show that DA is equal to DB is equal to DC. Already DA equal to DC तो दे दिया. So you also have to prove that this length is also same. Clear है? Easy? Yes, sir. Yes, sir. So कैसे करेंगे? The side and side. तो देखते हैं. So D is the midpoint. Okay. क्या करेंगे? You have to show that DB is also same as DC. Okay, देखिए बेटा. So let us start our working. एक कंस्ट्रक्शन क्या है? From क्या नहीं? From D, draw a line parallel to BC. Okay. To meet AB at E. To meet AB at E. Okay. So this point is E. So अब हम प्रूफ में जाएंगे. So first block बोलिए. So ये कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? Why did we do this construction? D is the midpoint आपको दिया है. This is parallel to this, that is by construction. Sir, midpoint theorem. Midpoint theorem है क्या? Converse है उसका. The converse. So from the converse of midpoint theorem, what can you say? Converse. What can you say from the converse of midpoint theorem? In triangle ABC, D is the midpoint of AC and DE is parallel to BC. So E has to be what? This E has to be the midpoint of Midpoint The AB. right? Which implies E is the Midpoint of AB. of AB. ब्रैकेट में क्या is लिखना है? equal to Midpoint of EB. AB. ब्रैकेट में क्या लिखना है? रीजन क्या है? कॉन्वर्स ऑफ एमपीटी. The converse of midpoint theorem.
theorem. Yes, sir. ब्लॉक हो गया। इसका मतलब AE is same as EB. BE. Okay. Now let us try to at this triangle and this triangle are congruent. वो प्रूव कर सकता हूं क्या नहीं? देखिए, can we prove that the triangles are congruent? So देखिए, in triangle ADE and triangle BDE, are there some properties which are same in these two? ये दोनों triangles में AE equal to BE है ना, Yes, sir. right? इसके बाद ED common. Sir, ED common Sir, side. DE common. ED is equal to ED common है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? AED 90 degree. Yes, sir. Angle Yes, sir. AED is equal to angle BED is equal to 90 degrees. क्यों? Alternate interior angle, sorry, Alternate corresponding angle corresponding angle. and linear pair, है ना? Since corresponding angles and linear pair है ना, एक तो 90 डिग्री से corresponding, उसका linear pair भी 90 डिग्री होना चाहिए। So कौन सा congruency rule से दोनों triangles congruent है? This implies triangle Yes. ADE is congruent to triangle BDE, right? SA is congruent. Sir, SSA. Yes, AS. Okay. So once these two are congruent, corresponding parts are same. CPCTC से क्या बोल सकते हैं? This implies BD is equal to DA. This should be same as this, right? Yes, sir. CPCTC. Yes, sir. Hence proved हो गया, क्योंकि ये दोनों तो automatically equal है ना? Sir. Yes, sir. So hence proved. Okay. समझ में आ रहे? नोट कर लीजिए। Yes. हाँ सर, हो गया। Sir, 2 minutes. Sir, 2 minutes. Sir, हो गया. अच्छे से देख लीजिए। दिस थ्योरम हैज 2 ब्लॉक्स। एक बार कंस्ट्रक्शन करने के बाद, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इज इंपॉर्टेंट हियर। सो वंस यू डू दिस कंस्ट्रक्शन, पहला कॉन्वर्स ऑफ एमपीटी यूज किया, दैट इज द फर्स्ट ब्लॉक। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स इज द नेक्स्ट ब्लॉक। ओके, 3 ब्लॉक्स में आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। Yes, sir. Done. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. P and Q are midpoints of AB and CD. P and Q are midpoints of AB and CD. AQ intercepts DPS. AQ intersects DP at S. BQ intersects CP at R. Show that first APCQ, second DPBQ, third PSQR are parallelograms. That's the question. क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. सो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कोशिश करेंगे।
So ABCD is a parallelogram. एक parallelogram. Okay. A C इसके क्या है? P and Q are midpoints. Okay. So P इसका midpoint है, Q इसका midpoint है. Okay. इसके बाद AQ intersects DP at S. AQ ड्रॉ किया मैंने एंड DP ड्रॉ किया. ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? दिस इज S. ओके. नेक्स्ट BQ set R. This point is R. Okay. So this point is S. This point is R. Okay. So क्या शो करना है हमको? What should you show? You have to show that APCQ is a parallelogram. ये वाला एक पैरेललोग्राम है. एंड DPBQ ये एक पैरेललोग्राम. PSQR बीच वाला एक पैरेललोग्राम. ये तीनों आपको दिखाना पड़ेगा. ओके. So how do we start? देखिए प्रूफ. So let us start our proof. कुछ आइडियाज आ रहे? फर्स्ट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी सारा आप यूज कर सकते हैं. ओके. So मुझे लग रहा है कि बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें. फर्स्ट APCQ इन quadrilateral APCQ. फर्स्ट AP पैरेलल टू CQ लिख सकता हूं. Why? ये दोनों पैरेलल क्यों है? क्योंकि सर पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड है. ओरिजिनल वाला तो पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड से पैरेलल. एंड AP इज इक्वल टू भी CQ लिख सकता हूं मैं. क्यों? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी. सर मिड पॉइंट. यस AP is AB by 2, CQ is CD by 2. ओके. यहां लिख सकते हैं सिंस AP is equal to AB by 2 and QC is equal to CD by 2 and AB is equal to CD. है ना? ये दोनों तो सेम है ना? यस सर. So one pair of opposite sides are parallel as well as equal. है ना? One pair of opposite sides are. Sir, hence they are parallelogram. Hence it is a parallelogram. Okay. This implies APCQ is a parallelogram, right? Reason क्या है? One pair of opposite sides are Yes. equal as well as parallel. Parallel. ये सेकंड का भी सिमिलरली प्रूव कर सकता हूँ. लगभग सेम है सेकंड. सर सेम ही होगा. सेम ही है ना? ओके. So similarly B can also be proved. Okay. Next C कैसे प्रूव करेंगे? How will you prove that this is a parallelogram? Any ideas? Sir, AQ is parallel to PC. ये भी बहुत इजी है. बहुत ओके, समझ में आ गया. सर बाकी दो से निकल जाएगा. APCQ is a parallelogram. This implies AQ parallel to CP होना चाहिए, right? ये AQ and CP parallel होना चाहिए. Similarly, अगर B proof हुआ तो this implies DP is parallel to BQ होना चाहिए, right? ये दो साइड्स पैरेलल होना चाहिए. ये दो साइड्स भी
पैरेलल होना चाहिए, which implies from these two you can say that PSQR is a parallelogram. समझ में आ रहे? Okay or not? Yes, sir. नोट कर लीजिए. Sir, हो गया. Done. So please wait. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. Yes, sir. Okay. Next question. Prove that the line segment joining the midpoints of diagonals of a trapezium are parallel to each of parallel sides and equal to half the difference between these sides. एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन समझने के लिए कोशिश करेंगे. डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ओके, सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. क्या बोल रहे हैं? एक ट्रेपीजियम है. ओके, यू हैव ए ट्रेपीजियम. इट डजंट नीड टू बी एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. समझ में आ रहे? कोई भी एक ट्रेपीजियम है. दिस इज पैरेलल टू दिस. ए बी सी डी. ओके, व्हाट इज हैपनिंग नाउ? इसके बाद क्या हुआ? Show that the line joining the midpoints of the diagonals of the trapezium. एक diagonal AC है, एक diagonal BD है. ओके, AC का midpoint let P of AC and Q be the midpoint of BD. क्या? If you join PQ, you have to prove that this PQ is parallel to AB and CD, and PQ is equal to half of AB minus CD. Okay. So to be proved क्या है? What is to be proved? PQ is parallel to AB and PQ is half of AB PQ is equal to half of AB minus CD. Okay, clear? So कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखते हैं. कुछ आइडियाज आ रहे? कुछ मिड पॉइंट थ्योरम ऐसा कुछ अप्लाई कर सकता हूँ इसमें? तो पहले इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. पहले इसको कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? A line QR joining BC at the point where it is equal. A line QR joining AB parallel to
AP and पैरेलल टू AP। पैरेललोग्राम कंप्लीट करें क्या? yes sir. उससे क्या फायदा होगा पैरेललोग्राम कंप्लीट करने से? देखिए मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, देखिए कैसे काम करते हैं। ओके Yes. Okay, sir. सो Yes, sir. मैं डीपी को ज्वाइन करता हूं, ज्वाइन डीपी एंड एक्सटेंड इट so that it cuts AB at R. Okay. So proof से पहले I'll do a construction. Construction क्या है? Join DP and extend it to cut AB at R. Okay. क्लियर है? तो ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमको क्या फायदा मिला देखिए। ये दोनों ट्रायंगल्स देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, दोनों congruent है। so triangle APR is congruent to triangle CPD। बोल सकता हूँ क्या नहीं? Yes sir. कैसे? Yes, क्या sir. क्या इक्वल है ये दोनों में? ऐसे yes. Vertically opposite angle. हाँ देखिए, so क्या क्या इक्वल है देखिए। साइड AP is equal to CP। okay, AP is equal to CP। next So vertically opposite angle. vertically opposite angle same है, angle APR is equal to angle CPD, right? Sir, alternate interior. And this angle is equal to this angle, क्योंकि दोनों parallel है, alternate interior angles। angle PAR is equal to angle PCD। क्लियर है? so दोनों triangles congruent बोल सकता हूँ। once these two triangles are congruent, then what can you say? CPCTC Sir, से क्या बोल DP सकते is हैं? equal to PR. This implies DP is equal to PR बोल सकते हैं। that means P is the midpoint of DR. P is the midpoint of DR। okay, Yes. क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, अब sir. नेक्स्ट, ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया आपका। सेकंड ब्लॉक में आप क्या कर सकते हैं? सेकंड ब्लॉक में ये वाला ट्रायंगल ले सकते हैं। हाँ सर। सो ट्रायंगल RDB में, सो इन ट्रायंगल RDB अगर मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? देखिए P जो है DR का मिड पॉइंट है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, सो PR का लेंथ क्या होना चाहिए? PR should be parallel to ये भी होना चाहिए, एंड PR is equal to what? half of what? सर PQ होगा ना? PQ, सॉरी PR नहीं है। Sir, लेकिन PR is how is it equal to means parallel? Oh. देखिए ये वाला जो पतला वाला ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लीजिए। P इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट, सो ये दोनों को अगर ज्वाइन किया तो दिस विल बी पैरेलल टू दिस एंड PQ विल बी हाफ ऑफ व्हाट? BR। सही है? समझ में आया नहीं? Yes sir. Yes, sir. Sir, So- midpoint theorem से हाँ PQ मिड और पॉइंट, हाँ बोलिए। मिड पॉइंट थ्योरम ये वाला
आर डी बी में यूज किया मैंने, ट्रायंगल आर डी बी में मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया। ओके, बट व्हाट इज बी आर? बी आर क्या है? बी आर इज ए बी माइनस ए आर, सही है? AR. बट ए आर इज इक्वल टू, CD. CD. that is equal to half of AB AB minus minus हो गया ना प्रूफ? Yes, sir. समझ में आया? सो बीच में कुछ लाइंस में लिखा नहीं, वो अपने से लिखना है। यहां से यहां तक कैसे आया? You have to write in triangle RDB, P is the midpoint of DR, Q is the midpoint of DB. Hence, by midpoint theorem, PQ is parallel to BR and PQ is equal to half of BR. Clear? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे? Sir, 2 minutes. नोट कर लीजिए। Sir, done. ओके, जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। Yes, sir. हाँ Done. सर। Yes, sir. Next question. Yes. In a parallelogram ABCD, in a parallelogram ABCD, the bisector of angle A also bisects BC at X. The bisector of angle A also bisects BC at X. Prove that AD is equal to 2 times AB. So that is bisector of angle A. Okay. बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है। ओके, इस पैरेललोग्राम में क्या हो रहा है? दिस इज ए बी सी एंड डी। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, वो क्या कर रहे हैं? द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए also bisects BC at X. Also bisects BC at X. इसका मतलब क्या है? BC को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब शायद पैरेललोग्राम ऐसा नहीं है ना। पैरेललोग्राम ऐसा है तो एंगल A का जो बाइसेक्टर BC को बाइसेक्ट नहीं कर रहा, नहीं कट पर है। हाँ, इसका मतलब लंबा डायग्राम ऐसा होगा। नहीं है। हाँ, डायग्राम चेंज करेंगे। ओके, Okay. डायग्राम चेंज कर रहा हूँ। ओके, सो शायद मुझे लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है? दिस माइट बी द शेप ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, तो मान लीजिए ये ए बी सी डी है, ये तो एंगल बाइसेक्टर है। बोल रहा है कि बी सी बाइसेक्ट कर रहे हैं। लेट दिस पॉइंट बी ई, सो दिस इज सेम एज दिस। ओके, आप लग रहे हैं? Yes. हाँ सर। Yes, sir. So आपको क्या प्रूव करना है? It happens, what should you prove?
this happens, you have to prove that AD Sir, is AD equal is to 2 times 2 times AB. इसका मतलब you have to prove that this AD is double that of AB. Okay. So how can we do this? कैसे करेंगे? कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे? ऐसा कुछ पैरेलल ड्रॉ करेंगे? इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शन कंपलसरी है? ऐसा कंपलसरी नहीं होता बेटा, अगर डायरेक्टली निकालने के लिए कोशिश करें, अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, आपका एम इज टू प्रूव, अगर उस प्रूफ के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है आपको करना पड़ेगा। ओके सर। क्योंकि डायरेक्टली आपको प्रूफ नहीं हो रहा है ना, इसमें कैसे प्रूव करिएगा आप? यस सर, कोई भी प्रॉपर्टीज काम नहीं आता है डायरेक्टली नहीं आ रहा है ना। सो मान लीजिए हम ऐसा एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ओके, दिस इज ए पैरेललोग्राम, सो ऑलरेडी ये तीनों पैरेलल हैं। सो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ EF पैरेलल टू AB। ओके, सो वंस यू डू दिस, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? कैन वी डू समथिंग? कॉन्ग्रुएंसी। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्या बाय एनी चांस? ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा? यस सर। होता है क्या? यस सर। ठीक है, ये बोल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर है, सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल, दिस इज कॉमन एंड दिस इज ए पैरेललोग्राम है ना, क्योंकि ये दोनों साइड्स ऑलरेडी पैरेलल है, ये कंस्ट्रक्शन से साइड्स आर इक्वल होगा। सो ABEF इज ए पैरेललोग्राम, सही है? ABEF is a parallelogram. Since why? Since AB parallel to EF by construction, right? And AF parallel to BE given. मैं given लिखा नहीं हूं, बट एग्जाम में आपको given भी लिखना पड़ेगा। ओके, so once ABF is a parallelogram, हम क्या कर सकते हैं? AB is equal to EF लिख सकता हूं? Opposite sides are Yes sir, of equal. a parallelogram. So this side is same as this side. Okay, now I can prove the congruency. This is the first block. Triangle ABE is congruent to triangle AEF. कौन सा congruency? SAS हो जाएगा, right? Yes sir. हाँ सर। SAS congruency, दोनों congruent है। Okay, which implies अगर ये दोनों triangles congruent है तो हमारा मतलब उससे क्या फायदा है हमको? उससे कुछ Half फायदा of हुआ? BC is equal to AB is equal to, हाँ, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो गया है ना? yes, so दोनों आइसोसेलेस। AB is equal to AF, मतलब AB जितना है AF भी उतना ही है। एंड नेक्स्ट, ये ऊपर वाला भी पैरेललोग्राम है ना? यस सर। FECD is also a parallelogram, क्योंकि opposite sides are parallel. This implies CE is equal to क्या है? DF, but CE is same as BE. CE is same as BE. Is same as AF. Is same as AF, right? This implies
DF is also same as AF. सही है क्या नहीं? ये दोनों इक्वल है, बट ये जो है इससे भी इक्वल है, इससे भी इक्वल है, सो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल हो जाएगा. ओके, Yes, sir. AF equals to AB. हो गया. तो दिस इम्प्लाइज, लगभग आपका काम खत्म हो गया. तो दिस इम्प्लाइज AD is equal to AF plus FD, that is equal to AF plus AF. FD is same as AF, that is equal to 2 2AB. times AF, which is equal to 2 times AB. AF is equal to AB है ना? Yes, sir. क्लियर है? तो proof हो गया. AD. AD is equal to 2 times AB. क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. सर 1 मिनट. Yes, sir. Done. Next question. ABCD is a square. ABCD is a square. EFGH are points on AB, BC, CD and DA, such that AE is equal to BF is equal to CG is equal to DH. Show that EFGH is also a square. Show that EFGH is also a square. Okay. So first क्या है? ABCD is a ABCD is a square. इसके बाद क्या किया आपने? You have taken 4 points on AB. AB के ऊपर एक पॉइंट है. इसके बाद BC के ऊपर एक पॉइंट है. CD के ऊपर एक पॉइंट है. DA के ऊपर एक पॉइंट है. This is E F G H. बेसिकली AE का लेंथ जो है, BF का लेंथ जो है, C का लेंथ जो है, DH का लेंथ जो है, ये चारों लेंथ इक्वल है. ओके, सो यू हैव टू शो दैट जो EFGH ज्वाइन करने पे जो फिगर मिलेगा, दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर. ओके, क्लियर? तो सोचिए कैसे आप
प्रूफ कर सकते हैं। अब कैसे प्रूफ कर सकता है कि वो भी स्क्वायर है? सो एक क्वाड्रिलेटरल को सर चार ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हाँ, द साइड इक्वल है सीपीसीटी से। तो सीपीसीटी से हो जाएगा। ठीक है। सर सो ये एक इजी है। हाँ, एक क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए अलग अलग तरीका है। एक ऑप्शन है सारा साइड्स इक्वल प्रूफ करके सारा एंगल्स 90 प्रूफ किया तो हो जाएगा। ओके, इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द 4 एंगल्स आर 90 डिग्रीज देन इट इज अ स्क्वायर। वो शायद हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? आप देख सकते हैं ट्रायंगल AEH will be congruent to triangle BF will be congruent to triangle FCG will be congruent to triangle GDH। ये चारों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, मतलब इतना डायरेक्टली नहीं लिखना एग्जाम में, समझ में आता है ना? आई एम जस्ट शोइंग द कॉन्सेप्ट हियर। Yes, सबका sir. साइड्स इक्वल है ना सर? एसएसएस नहीं है सर एंगल एक है। हाँ, एसएएस। ओके, एसएएस कॉन्ग्रुएंसी से सारा इक्वल हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये चारों इक्वल है तो जो बचा हुआ है वो सब कुछ इक्वल हो जाएगा ना? यस सर। And पीसीटी because the original quadrilateral is a square, बीच में 90 डिग्रीज तो रहेगा। So SAS congruent से all the 4 triangles are congruent. Okay, which implies what? EF is equal to सर दैट इनसाइड स्क्वायर इज अ ट्रायंगल सर is equal to GH is equal to HE. Okay, clear? इसके बाद all angles are 90 कैसे Yes, प्रूव sir. करिएगा? How will you prove that all the angles are 90 degrees? इसमें ऐसा कर सकते, देखिए अगर ये थीटा है, वो वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस। अब ये वाला ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है ना, सो ये 90 माइनस थीटा यहाँ आएगा ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स। इक्वल साइड्स का ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा ना, AE का ऑपोजिट एंड BF का ऑपोजिट दोनों इक्वल होगा, राइट? ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट को, देखिए यहाँ 3 एंगल है, 1 एंगल, 2 एंगल्स एंड द थर्ड एंगल, राइट? सर इनसाइड द ये स्क्वायर तीनों एंगल्स मिला के कितना होना चाहिए? 180 180 degree. है ना? तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस एंगल E in the square should be equal to 180 इक्वल degrees. टू 90। तो थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो वैसा करके एंगल E is equal to 90 डिग्रीज प्रूव कर सकते हैं। ओके, so similarly all the angles can be proved as 90 degrees, right? Similarly Yes, sir. all other angles can be proved to be right angles, right? Okay, hence EFGH is a square. Okay, clear है क्या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। अगर ये समझ में आया तो आगे जा सकता हूँ मैं। देखिए हाँ, सर. आप, फिर बोल रहा हूँ, एग्जाम में इतना डायरेक्टली नहीं लिखना है, ये पता है ना? यस। एग्जाम में हर एक स्टेप आपको अच्छा सा लॉजिक्स जो है वो लिखना पड़ेगा। ओके, सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री वो भी सब दिखाना पड़ेगा ना। क्या है बेटा?
So all the angles are 90 degrees. That also नहीं नहीं, वो आप सिमिलरली लिख सकते हैं, जो फर्स्ट वाला जो है वो अच्छा सा दिखाना पड़ेगा। सर उसके बाद सिमिलरली लिख सकते हैं। इसमें भी देखिए ट्रायंगल AEH इज इक्वल टू BF, ये मान लीजिए अच्छे से दिखाया। इसके बाद सिमिलरली ऑल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आप लिख सकते हैं। Okay, sir. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा। यस सर। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है देखिए, सो ABCD इज ए rhombus, ABCD is a rhombus। नेक्स्ट क्या है, EABF, EABF is a straight line, EABF is a straight line, okay। EABF is a straight line such that EABF is a straight line such that EA is equal to AB is equal to BF। Prove that ED and FC when extended meet at right angles, meet at right angles। क्वेश्चन समझ में आ रहे? डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका। ABCD is a rhombus, okay, let us draw the diagram। ABCD is a rhombus, कैसे ड्रॉ करेंगे? ओके, rhombus, ओके। ABCD is a rhombus। इसके बाद क्या है, EABF is a straight line such that EA is equal to AB is equal to BF। इसका मतलब इसको एक्सटेंड करना है ना शायद? Yes, sir. तो आगे एक्सटेंड करेंगे यस इसको, सर, पीछे भी। पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं। सो EA इसके लिए दिस is equal to this is equal to this, okay। What should you prove? You have to prove that ED and FC, ED and FC when extended meet at right angles, okay। So ये right angle जो है आपको दिखाना पड़ेगा, right? सर मतलब हम लोग को प्रूफ करना है कि वो राइट। हाँ, ये you have to prove that this is right angle। You have to prove that ED and CF on extension give a right angle, okay। इसका मतलब इफेक्टिवली आपको प्रूव करना है, अगर ये 90 डिग्री प्रूव करना है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर 90 डिग्री प्रूव किया तो हो जाएगा। यस Yes, sir. यस सर। So let us try to see whether it can be done or not, okay। या ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल भी 90 डिग्री प्रूव किया तो हो जाएगा। अलग अलग तरीका है आपको प्रूव करने के लिए, ओके।
तो डायग्राम समझ में आया? Yes, sir. तो फर्स्ट क्या है? Yes, sir. The first thing that is given is ABCD is a rhombus. इसका मतलब चारों साइड सेम है ना? Yes, sir. So given AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, right? So इसको कैसे यूज कर सकते हैं? How can you use this? Because the sides are equal. The sides are equal है ना? So proof में चले जाएंगे, शायद इसमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा. Okay. Congruency. So AB is equal to AD and AB is also equal to AE. So ये दोनों साइड्स इक्वल है ना? इसका मतलब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल बोल सकते हैं. अगर ये थीटा है तो होना चाहिए क्या नहीं? Yes, sir. Triangle AED is isosceles, right? Yes, sir. Which implies angle AED is equal to angle ADE is equal to theta से हम assume करेंगे कि वो दोनों एंगल्स थीटा है. ओके? Yes, sir. सिमिलरली अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा. Yes, sir. Yes, sir. मैं इस यहाँ सिमिलरली लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि एक तो अच्छे से प्रूव किया मैंने. Yes, sir. एक बार हम लोग ने prove कर दिया. तो ये सिमिलरली जो है आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक अगर अच्छे से प्रूव किया तो दूसरा प्रूव करने का जरूरत नहीं. सिमिलरली एंगल BFC is equal to angle BCF is equal to alpha से. ओके? सो अभी आपका काम है ये अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री प्रूव किया तो हो जाएगा. सो वो कैसे करेंगे? सो रोम्बस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर कितना होता है? 180. 180. क्योंकि So 180. रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम. A special parallelogram. ओके? सो आप ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? व्हाट इज दिस एंगल? So 90 माइनस सॉरी 90 90 नहीं, minus 180 theta. माइनस Sir, 180 minus 2 theta. So in triangle AED, angle DEA, sorry, angle, कौन सा एंगल? DAE. Angle DAE is equal to 90 minus 2 theta होगा. Sorry, 180 है ना? 180 degrees minus 2 theta, right? In triangle BFC, angle FBC is equal to 180 degrees minus 2 alpha होना चाहिए. सही? Yes, sir. जैसे ये 2 वाला. alpha. बट ये दोनों का सम क्या होना चाहिए? बट 180 एंगल degree. BAE प्लस एंगल FBC इज इक्वल टू 180 होना चाहिए क्या नहीं? एक बार ध्यान से देखिए, ये दो एंगल्स मिलकर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए. ये चारों एंगल्स मिला के 180 होना चाहिए ना, दो लीनियर पेयर है. बट उसमें ये दोनों मिलकर कितना है? 180. 180. सो 180. बाकी दो मिलकर कितना होना चाहिए? 180. 180 होना चाहिए, 180. राइट? Yes, सर इसी- ये चारों एंगल्स मिला के 180 कैसे हुआ? चारों तो 360 होगा. ये Total दोनों 2 linear है तो सर 360 होगा. 360 होगा ना?
नहीं ये चारों मिलके हाँ सर 360 चारों है। मिला के 360। ये चारों मिलके हाँ 360 है। सर उसमें से ये दोनों मैं निकाल दिया ना, ये दोनों मिलके 180 है ना। हाँ सर। तो सिर्फ मैं आउटर आउटर ऐड कर रहा हूँ। आउटर आउटर मिलके कितना होना चाहिए? 180. 180 होना चाहिए, राइट? यस सर। Yes, सो sir. दिस इंप्लाइज, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड किया तो दिस इंप्लाइज 360 माइनस 2 थीटा माइनस 2 अल्फा कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। 180. सर इसको अगर थीटा सिंपलीफाई प्लस किया अल्फा तो सर 90. 2 टाइम्स थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 आया। सो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना? 90 थीटा प्लस degree. अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज हो गया। सर 90। वही आपको प्रूव करना है ना, यस सर। which implies this angle is equal to 90 degrees. Clear है? यस सर। इजी लग रहा है? Yes, sir. अल्फा प्रूव कर दिया 90 डिग्री, तो वो एंगल कैसे हो गया 90 डिग्री? क्योंकि ये बड़ा ट्रायंगल में ये एंगल ये एंगल मिलके कितना होना चाहिए? यस सर, समझ गई। 180 होना चाहिए ना। तो ये दोनों मिलके 90 है, तो बचा हुआ कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। क्लियर है? एग्जाम में लिखना पड़ेगा। सर एग्जाम sir. में इन ट्रायंगल, इसको अगर मान लीजिए G मान लिया, तो इन ट्रायंगल EFG angle E plus angle F plus angle G is equal to 90 degrees. This plus this is 90. 90 plus this is equal to 180. So this angle is equal to 90 degrees. Clear? ओके सर। So okay बेटा, आपका काम शुरू हुआ। इस चैप्टर का क्वेश्चंस घर में प्रैक्टिस करना है। अगर कुछ डाउट्स है तो, अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं बना तो नेक्स्ट क्लास तक आप रेडी रखिए। ओके कोई भी डाउट, कुछ भी डाउट्स है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके प्रैक्टिस Okay, sir. ओके बेटा, सो गुड नाइट। ये बेटर लग रहा है बेटा सिस्टम प्रीवियस क्लासेस यस से? सर। यस सर। Yes sir. थैंक यू सर एंड बाय सर। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट बेटा सबको। Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Good Bye, night, sir. sir. Thank you, Good night, sir. sir.